जिसकी हिफाजत हमने की, आइए सभी इधर आइए। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। आगे से नमस्कार, खाली रखिए। मैं उप निरीक्षक कार्यपालक मिताली बासु एसजी बागडोगरा एयरपोर्ट की तरफ से आज 76वीं स्वतंत्रता दिवस के पावन बेला पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आजादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ये बैलून क्या है? मैं चढ़ता है। तू ना कैसे करूँ ना? ओए आप नहीं जाओ, चलो यहाँ। आंगन में आंगन हो चुका है। कहाँ हर कोई ऐसा सम्मान पाता है, कहाँ हर कोई ऐसा सम्मान पाता है। यह किस्मत वाला है जिसका लहू वतन के काम आता है। वह किस्मत वाला है जिसका लहू वतन के काम आता है। आज तिरंगा लहरा रहा है, देखो पूरी शान से। आज तिरंगा लहरा रहा है, देखो पूरी शान से। हमें मिली थी आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। 76वीं स्वतंत्रता दिवस के पावन बेला पर उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि महोदय, एयरपोर्ट डायरेक्टर महोदय, कासो महोदय एवं उपस्थित सभी साथियों को हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं। यह विशेष अवसर पर प्रकृति अपनी छटा चारों ओर बिखेरे हुए है और वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरा है। अब मैं इस विशेष अवसर पर कुछ शब्द कहने के लिए माननीय एयरपोर्ट डायरेक्टर महोदय को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। माननीय एयरपोर्ट डायरेक्टर महोदय। सबको नमस्कार। On the occasion of auspicious 75th Independence Day of our nation, we observe Azadi Ka Amrit Mahotsav and Har Ghar Tiranga in an emotional and dedicated way. This is all we could achieve because our great leaders have sacrificed their life for our freedom. On this greatest day, I would like to share about the traffic growth at our Bagdogra airport. The passenger traffic for the last financial year, that is
21-22 was about 2 million passengers, which was about 35% of the financial year 2021. Similarly, our flight movements have also increased by 51%, and even cargo also, it has increased by 46% of the financial year 2021. So it shows that we are in a very progressive way. So we would be definitely achieving whatever we had pre-COVID. And I would like to share few things which we have achieved. See, we all know that we were the land acquisition. We have achieved our land acquisition, and after it has come to our AI possession, and our corporate headquarters AI has already started a tender for architectural engineering consultancy. So we would see shortly of our new terminal building coming up for our Bagdogra Airport. During the runway closure recently, last 2 weeks, we have done, in fact our engineers have done a tremendous, so nice jobs, like replacing the flooring with a new granite stone and perforated metallic fall ceiling and lighting and renovation of arrival VIP lawn. And we have also, in fact, we have completed our addressable fire alarm system to increase the safety of our passengers in the terminal building. Apart from that, we had opened a self-help group to encourage the local artisans of this region. And a humble lift has been provided at our airport for facilitating Divyang, that is our PRM passengers. And we have done also tensile fabric structure in our car parking, which will really provide a shelter for the passengers as well as waiting for the car. And we have done bollard and tire killers also for our both approach road, so that we comply our BCS as well as our Bagdogra Airport being the hypersensitive airport. We have also provided additional prepaid taxi counter being operated by our police in car parking area for avoiding congestion in front of our terminal building arrival, and also provided collapsible barrier. And the progress which is now going on, we are extending the terminal building arrival area to accommodate our additional arrival conveyor belt. In addition to that, we will have some area on the terminal building also. Above all, I sincerely, heartfully commend and appreciate our CASO CIS, who has been so motivated and energetic to avoid no congestion of the passengers in the terminal building, for which I am so grateful to our CISF fraternity, without whom it is not possible at all. Above all, on behalf of AI, I thank all our airlines and all stakeholders for making this airport operations a grand success. I wish this go on forever. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय एयरपोर्ट डायरेक्टर महोदय। मुख्य अतिथि महोदय कैप्टन श्री ज्ञानेंद्र कुमार राय, वीर चक्र, 1st बटालियन 11 गोरखा राइफल से स्वतंत्रता दिवस के इस पावन दिन पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सन 1999 में जब कारगिल वॉर शुरू हुआ, तब आप जम्मू कश्मीर में कर्तव्य पर तैनात थे। महोदय, आपको बतालिक इलाके में जाने का निर्देश मिला। कारगिल की दुश्वार चढ़ाई एवं सामने से आती दुश्मनों की गोलीबारी सामना करते हुए दस्ते के साथ खालूपुर चोटी पर मोर्चा संभाला एवं दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया। इस अदम्य साहस एवं वीरता के लिए सरकार ने आपको 26 जनवरी सन 2000 में वीर चक्र से सम्मानित किया। आज आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर बागडोगरा एयरपोर्ट आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता है। मैं माननीय एयरपोर्ट डायरेक्टर महोदय से मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करने हेतु आग्रह करती हूँ।
अब मैं इस विशेष अवसर पर कुछ शब्द कहने के लिए माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करती हूँ। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। थैंक यू माननीय अतिथि महोदय। Now I request my honorable chief guest to come on the stage and give few words. नमस्कार, जय हिंद। आज अमृत महोत्सव स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ पर उपस्थित एयरपोर्ट डायरेक्टर शिरोमणि पीजी डिप्टी कमांडेंट सीआईएसएफ श्री के गौतम जी, उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण, एयरपोर्ट स्टाफ, सीआईएसएफ स्टाफ, आज हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस या अमृत महोत्सव पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी अवसर पर हमारे देश के कई स्वतंत्रता सेनाओं ने देश के लिए अपने जीवन को सर्वोच्च बलिदान किया था और देश के लिए देशवासियों ने स्वतंत्रता के खातिर हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए कई लोगों ने अपने देश के लिए अपने जीवन को सर्वोच्च बलिदान दिया था। इस स्वतंत्रता के बाद भी हिंदुस्तान ने कई ऐसे युद्ध लड़ी है, जैसे 1962 भारत चाइना का युद्ध, 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध और 1999 जो कारगिल युद्ध जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इस कारगिल युद्ध के दौरान मैं भी इस युद्ध में पार्टिसिपेट होने का मुझे अवसर मिला है। ये हिंदुस्तान का अब तक का 4 युद्ध में लास्ट युद्ध था और इस अवसर पर भारत के कई वीर जवानों ने अपने जीवन को सर्वोच्च बलिदान दिए, जिसके फलस्वरूप हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ाई जीतने में या सफल होने में कामयाब हुए हैं। ये हमारे देश के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हिंदुस्तान विश्व में सबसे उच्च दर्जा पर हिंदुस्तान का नाम है। मैं इस युद्ध के दौरान मेरे साथ नए युद्ध का जो मुझे अवार्ड मिला है, जो डायरेक्टर साहब ने या संचालक मैडम ने बताया है, वीर चक्र जो अवार्ड जो मिली थी, ये युद्ध 8 मई 1999 से शुरू हुआ था कारगिल युद्ध और जुलाई के अंत में जाके यह कारगिल युद्ध खत्म हुआ था और 26 जुलाई को भारत हिंदुस्तान ने कारगिल विजय दिवस मनाया था युद्ध खत्म होने के बाद। इस युद्ध के दौरान काफी कठिनाइयां थे, क्योंकि ये बहुत हाई 12,000 से लेकर 18,000 फुट की ऊंचाई ये पहाड़ी चोटी पर युद्ध लड़ा गया था। यहाँ पे आम लोग पहुंचना भी काफी दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी और बर्फीली इलाका होने के कारण वहाँ एक्लोमेटिक की जरूर है, क्योंकि वह चढ़ना भी काफी कठिन है।
इस इलाका में लड़ाई युद्ध लड़ना काफी मुश्किल था। एक्चुअल पे युद्ध होने के कारण जितने भी कारगिल के या उस इलाका के जितने भी पहाड़ी चोटी है ऊंचाइयाँ, उस इलाका में दोनों सेनाओं के समझौते के अनुरूप जो विंटर सीजन में दोनों सेनाएं ऊपर अपने इलाका को छोड़कर नीचे रहता था, लेकिन पाकिस्तानी सेनाओं ने धोखे से जितना भी हिंदुस्तान के जितने भी ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाका है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ी चोटी पर वो धोखे से आकर पूरे इलाका को कब्जा करके रखा हुआ था। इसी कब्जा वाले जितने भी जमीन है उसको आजाद कराने के लिए ये युद्ध हुआ था। ये इलाका काफी अलग से हिंदुस्तान जो श्रीनगर से लेके और जाने वाले रास्ता 6 महीने के लिए बंद रहता था और 6 महीने खुलता है। ये विंटर सीजन में बंद रहता है और समर सीजन में खुलता है। और ये दुश्मन का खास उद्देश्य था बटाले कारगिल द्रास इलाका, जो पहाड़ी चोटियां हैं उसको कब्जा करके जो श्रीनगर से लेके और जोड़ने वाले जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इसको अवरुद्ध करके बंद करके उस इलाका में उग्रवाद को बढ़ा देना और वहाँ के जनजीवन को अस्त व्यस्त करना, ये उसका मुख्य उद्देश्य था। इन्हीं कार्रवाई को जो दुश्मन की इन्हीं कार्रवाई को नाकाम करने के लिए हिंदुस्तान आर्मियों ने यहाँ पर ऑपरेशन विजय के नाम से युद्ध लड़ी गई थी। मैं फर्स्ट 11 गोरखा राइफल्स के नुमाइंदा होने के नाते हमारे यूनिट सियाचिन ग्लेशियर जो ऑल हाइस्ट बैटलफील्ड जो है विश्व का सबसे उच्च लड़ाई क्षेत्र है, वहाँ से हमारा यूनिट का कार्यकाल समाप्त होने के बाद हम लेह से नीचे तकरीबन कारगिल के नजदीक हम अपना डिप्लॉयमेंट था, क्योंकि वहाँ से रास्ता खुलने के बाद ही हम नीचे आ सकते थे। इस वजह से उसकी इंतजार में थे। उसी वक्त 8 मई 1999 को हमें खबर मिली थी कि वहाँ पे कुछ घुसपैठ किया हुआ है और वहाँ जाने के लिए हमें आदेश मिला है। हम 8 मई से जिस दिन युद्ध शुरू हुई उसी दिन से हम इस कारगिल युद्ध में पार्टिसिपेट थे। हमारे शुरू में काफी दिक्कत हुआ। हमारा जो माउंटेन इलाका के हिसाब से हमारे पास इक्विपमेंट नहीं थे, हथियार नहीं था और वहाँ पे एक्लोमेटेड के लिए हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि हम उससे हाइट जो कि 21-22 हजार की फुट की ऊंचाई पर हम रह चुके थे, इसलिए हमने एक्लोमेटाइजेशन की जरूरत नहीं था। फिर हम वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ के इलाका को पूरा हमने ऑब्जर्व करते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। दुश्मन जितने भी पहाड़ी का जितने ऊंचे पहाड़ी चोटी है उनको कब्जा करके बैठा हुआ था। हम नीचे से ऊपर की ओर हमला करना, वो भी बर्फीली इलाका, वहाँ पे पूरे इलाका बर्फ था, उस टाइम बर्फ से ढका हुआ था। हम उसी के ऊपर फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे और पूरा दुश्मन को डिप्लॉयमेंट को हमने पता करना शुरू किया और हमारे पास धीरे धीरे इक्विपमेंट आने लगे, हथियार, एम्युनिशन, गोला बारूद, जो आम युद्ध के पहाड़ी इलाका में लड़ने वाला जो इक्विपमेंट थे वो पहुंचे। फिर हमने पहाड़ी चोटी पर आक्रमण शुरू करना शुरू किया। इस युद्ध में बहुत कठिन था, क्योंकि वहाँ पे हम रेस्ट कर नहीं सकते थे, क्योंकि बर्फ ही बर्फ है। रात दिन हम 24 घंटे हम बर्फ के ऊपर रहना है, वहाँ पे रेस्ट करना भी मुमकिन नहीं था। और वहाँ पे जितने भी ऊपर वाला हिस्सा को कब्जा करने के कारण नीचे से हमने सप्लाई करना और हमने हरकत करना भी काफी कठिन था। लेकिन उसके बावजूद भी हमने हार नहीं मानी और हमने दुश्मन के ऊपर हमला करते हुए कई पहाड़ी चोटी को अपने कब्जे में ले चुके थे। इसी वक्त तकरीबन हम 2 महीने लड़ चुके थे। उसके बाद जब शुरू में हमारा फर्स्ट कैजुअल्टी हुआ है 15 मई को, जो सुनील जंग यूपी का रहने वाला है, वो शहीद हुए थे। उसके बाद हमारा आक्रमण जारी रहा और धीरे धीरे हम दुश्मन के पहाड़ी की चोटी को कब्जा करते हुए हम आगे बढ़ना शुरू किया। इसी वक्त हमारे फॉर्मेशन लेवल से हमें आदेश मिला है कि एक दुश्मन का बहुत महत्वपूर्ण दौड़, जहाँ पे दुश्मन का हेडक्वार्टर था, वहाँ पे कई बटालियन हमला कर चुके थे, लेकिन उनका किन्हीं कारणों से सफलता हासिल नहीं हुई है। इसके बावजूद हमारे यूनिट को फॉर्मेशन लेवल से हमें आदेश मिला है कि उस पहाड़ी चोटी को कब्जा करने के लिए हमारे पलटन को जिम्मेदारी दिया गया और हम फिर उस आक्रमण के लिए हमले के लिए उस इलाका में हम 2 कंपनी वहाँ पे युद्ध के लिए हम आगे बढ़े। उसमें मैं भी शामिल था। ये यहाँ पे ये दुश्मन का मेन गढ़ और दुश्मन का हेडक्वार्टर होने के कारण वहाँ पे आक्रमण करना काफी मुश्किल था, इसीलिए 2 बटालियन में वहाँ हमला कर चुके थे, लेकिन उनका सफलता हासिल नहीं हुई। ये उस इलाका है जहाँ से पूरा बटालियन सेक्टर को
ऑब्जर्व करना, कमांड एंड कंट्रोल करना और उस इलाका को जो डिप्लॉयमेंट में जितना भी फोर्स है उनको कमांड एंड कंट्रोल करने वाला सबसे महत्वपूर्ण गण था। फिर हम वहाँ से आने के बाद हम धीरे धीरे वहाँ पढ़ने शुरू किया, वो दुश्मन के डिप्लॉयमेंट को पता किया और उस इलाका में उस वक्त तक हमने कई पोस्ट ले चुके थे, कई पहाड़ी चोटी के ले चुके थे, चारों तरफ से बम्बार्ड हो रहे थे और चारों से भारी तादाद में ऑटोमेटिक हथियार का वेपन का यूज हो रहे थे। हमें लगता था कि ये टिप्पणी के जैसे ही दिन में हो या रात में हो, लेकिन दिन में से भी ज्यादा रात में काफी भारी तादाद में गोलीबारी और बम्बार्डिंग होता था। ऐसे हालात में भी हम वहाँ पे उस दुश्मन के जो महत्वपूर्ण गढ़ है उनको अपने कब्जे में लेके हम आक्रमण जारी रखा। रात भर हम चाटते रहे, चारों तरफ से बमबारी होते रहे, ऑटोमेटिक हथियार का पूरा फायर आते रहे भारी तादाद में, फिर भी हम आगे बढ़ते रहे। इसलिए इस प्रकार हमने तकरीबन रात भर चढ़ने पर सुबह हमने वहाँ पर आक्रमण किया था और पूरे इलाका को हमने दुश्मन को खत्म करे, कई भागने में भी सफल हुए, पूरा इलाका को हमने खत्म किया। और दुश्मन को जब मतलब आमने सामने का युद्ध हुआ, जो बंकर के पहाड़ी के चोटी पर पहुंचने के बाद तब हमने हथियार से भी ज्यादा हमने क्लोज जो बंकर के अंदर युद्ध हुआ ज्यादातर हमने खुपरी से इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम जाती हथियार हमारा खुपरी है। इस वजह से हमने क्लोज फाइट में हमारा अपने वेपन से भी ज्यादा हम कारगर तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते थे, वहाँ पर ये कार्रवाई किया है और पूरे इलाका को हमने कब्जे में लिया है। कब्जे में लिया ऐसे कई और पहाड़ी थे, फिर आगे बढ़ने शुरू किया हमने और कई ऐसे पहाड़ी थे कि जहाँ पे अटैक करना भी काफी मुश्किल था, टाउन रीच होने के कारण डायरेक्ट अटैक करना भी मुश्किल था। और इसी अटैक के दौरान मुझे जो कमांडिंग अफसर से मुझे आदेश मिला है कि अंदर दुश्मन के अंदर जाके, क्योंकि डायरेक्ट हमने कब्जा नहीं कर पाते, अटैक कर नहीं पाता था, इसलिए अंदर घुस के दुश्मन के एरिया में घुस के उनके पीछे से काउंटर हमला करना, ताकि उसका ध्यान पीछे उनके आने जाने की रास्ता पर हो और यहाँ से हम हमला कर सके। ये सोच विचार से मैं अंदर जाने के लिए तैयार हुआ और मेरे साथ मैं 3 बंदे लेके अंदर घुसा था। लेकिन घुसना भी इतना मुश्किल था कि हम 10-15 मीटर के अंदर हम दोनों तरफ से हमारा हैंड ग्रेनेड से या हथगोले से हम एक दूसरे को फायर कर रहे थे और इतने नजदीक कि हमारे बेगर एम हमको मार गिरा सकता था। उस टाइम हमारा कुछ कैजुअलिटी हो चुके थे, कई कुछ हमने कब्जा में ले चुके थे। फिर वहाँ से अंदर जाने से पहले मैं अपना जैकेट डाउन, पहले क्लोथिंग नहीं था हमारे पास, नॉर्मल सीआईएसएफ जो है पीसीसी ने हम पहने वाला वही ड्रेस था, लेकिन हमारे पास इक्विपमेंट आया था, इसलिए हमने जैकेट डाउन में उधर ही खोल के, अगर इतना जैकेट पहन के जाऊंगा तो दुश्मन दूर से देखेगा कि इतना, इसलिए मैंने वहाँ खोल के और एम्यूनिशन और हथियार और अपने सेक्शन से लेके मैं अंदर घुसने के लिए तैयार हुआ। और जाने से पहले मैं कमांडिंग अफसर को यही बोला कि सब हमें सपोर्ट फायर की जरूरत है, क्योंकि बगैर हमको मार गिरा सकता है, क्योंकि हम घुसते हुए उन्होंने देख लिया। तो फिर सबको फायर करने के लिए सपोर्ट फायर दिए, उनका सिर उठाने का मौका नहीं मिला। उस वक्त हम नीचे अंदर घुसे, अंदर तकरीबन 200-300 मीटर घुसे थे। उस वक्त राइट साइड से फिर दूसरी रिस्ट लाइन से हमारे ऊपर भारी तादाद में फायर आना शुरू किया। जैसे फायर है, फिर मैं बोला अपने 3 जो हम 4 घुसे थे, 4 में से 3 को मैंने बोला कि ठीक है आप लोग यहाँ से सपोर्ट फायर देना, मैं नीचे जाऊंगा, नीचे जाने के बाद मैं आपको सपोर्ट फायर, आप लोग ऊपर आ, फिर नीचे आना। ये सोच के मैं उनको बोलने के बाद मैं नीचे ढलान, बहुत खड़ी ऐसे ढलान था उनकी एरिया में जाने के लिए, वहाँ ढलान होते हुए मैं नीचे जा रहा था, वहाँ पे रुक भी नहीं पाता था और अपने दोस्त को सपोर्ट भी नहीं कर पाता था। वैसे करते में तकरीबन 800-900 मीटर नीचे पहुँच गया। अगर वहाँ रुकता तो दुश्मन के एक कारगर रेंज में होने के कारण हम वहाँ पे रुक भी नहीं सकते थे। फिर धीरे वहाँ पहुँचने के बाद मुझे उनका आने जाने का रास्ता मिल गया, टेलीफोन लाइन था, टेलीफोन लाइन को काट दिया। पूरी से काटने के बाद फिर मैं आगे बढ़ना शुरू किया कि अपना तो 3 बंदे थे उनको सपोर्ट फायर दे के वो नीचे आ जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मेरे ऊपर और भारी तादाद में दूसरी साइड से भारी तादाद मेरे ऊपर फायर शुरू किया, लेकिन मुझे बहुत अच्छी जो छुपने का जगह मिला था, वहाँ से मैं देख भी सकता था, ऑब्जर्व भी कर सकता था और कॉन्ट्रोमेटिक फायर नहीं किया उनके ऊपर। तकरीबन मुझे 20-25 मिनट तक भारी तादाद में मेरे ऊपर फायर करते रहा। उसके बाद फायर भी स्टॉप हुआ। जैसे स्टॉप हुआ वहाँ से उनके वैसे बर्फीले इलाका और चट्टान थे, पत्थर थे, तो उनका बुट का जो आवाज है, मैं सोचा अपना आदमी पहुंच गया होगा। इसे देखा तो मेरे पास में ही 2 बंदे पहुंचे थे, उनको मैं मार गिराया, क्योंकि वो टेलीफोन लाइन बनाते हुए वो वहां पे पहुंचे थे। अगर उनको नहीं मारता तो मुझे मारता था, लेकिन मैं
उसकी मत की मैंने पहले उनको देखा। उनको जब मार गिराया, जब फायर हुआ, उनको मार गिरा, बस फायर पूरा मारने के बाद उसको मार गिराने के बाद उनको पता चला होगा कि आगे वाले पोस्ट को कि हम काउंटर में फंस गया है, काउंटर के में फंसा, हमें पूरे घेर चुका है। ये सोच के वो लोग वहाँ से ही फिर स्मोक फालते हुए एक हथगोले होते, ग्रेनेड बोलते, उनके हर एक जवान के पास वो स्मोक रहता है ताकि हम नजदीक फाइट करना हो या तो ओपन में करना हो, दुश्मन के नजदीक जाने के लिए वो स्मोक को इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के नजदीक पहुंच सकते हैं। उसी को इस्तेमाल करते हुए लोग भागना शुरू किया, काफी झुंड में भागना शुरू किया। मैं ग्रेनेड लेके उनके उधर डालने लगे। मैंने 4 ग्रेनेड थ्रो कर चुके थे, लेकिन मेरा एक मिस फायर हुआ था और 4 फायर हुआ था। कई दुश्मन को मार गिरा था, कई दुश्मन भागने में कामयाब हुए, कोई कैजुअलिटी हुए, चिल्ला रहे थे। तकरीबन ये 25-30 मिनट ये सिलसिला जारी रहा, पूरा धुआं का पर्दा खत्म हुआ। उन लोगों ने सोचा होगा कि वो लोग भी फायर कर रहे थे, मैं ग्रेनेड भी थ्रो कर रहे थे, क्रॉस फायर भी मार रहा था। उन लोगों ने सोचा होगा कि मैं अकेले नहीं हूँ, कई बंदे वहाँ होगा, इन लोगों ने पक्का सोचा, नहीं तो मैं अकेले होने को उनको पता चलने से मेरे को पहले मार गिरा सकता था। फिर ऐसे सिलसिला जारी रहा और भागने वाला भागे, घायल के पीछे में पीछा करना शुरू किया। अभी मैं सोचा हूँ कि कई 50-60 आदमी वहाँ पूरा को छोड़ के कई भाग गया, कई खत्म हुए, कई घायल हुए। घायल के पीछे में उनको फायर करना लगा, क्योंकि अगर मैं पोस्ट में तो पूरा खाली होगा, मैं वहाँ जाऊँगा तो चढ़ते हुए दुश्मन मुझे देखेगा और मुझे शूट करेगा। ये सोच के मैंने घायलों के पीछे घायलों को मारना शुरू किया। ऐसे करते तकरीबन आधा घंटा तक मैं वहाँ रुका। फिर मैं अपने जितना भी मेरे पास मैगजीन भरा हुआ जो एम्यूनिशन था वो खत्म हो चुका था। फिर मैंने एम्यूनिशन भरा, हम खुले में एम्यूनिशन उठाते थे। उस वक्त युद्ध के दौरान हम 2 महीने लड़ चुके थे। वहाँ पे खाने पीने के सामान से भी ज्यादा एम्यूनिशन की कीमत होती थी, क्योंकि उस वक्त आदमी जो हमारे स्केल के हिसाब से एम्यूनिशन न उठा करके कई जैसे 400-500 एम्यूनिशन उठाना हो, हथगोला 10-12 उठाना हो, यही हमारे लिए एक फिर इस प्रकार मैं उसके बाद मुझे होने के बाद मैं खत्म हुआ, भाग्य करके मैं ऊपर चढ़ रहा था तो उस वक्त मुझे गोली लगा है। पहाड़ी के ऊपर मैं दुश्मन नहीं होकर ऊपर चढ़ा, उस टाइम गोली लगा। मेरा गोली लगने के बाद मैं नीचे गिर पड़े, लेकिन आँख बंद हो गया था। फिर धीरे धीरे आँख खुला था, वहाँ पे मेरा शरीर से पूरा खून बह रहा था। उसके बाद मैं सोचा अब ये 2-3 आदमी कब पहुँचेगा, यही सोच रहा था। उसी वक्त फिर फुट का आवाज़ आया तो मैं सोचा अपने आदमी पहुँचे हो, लेकिन पूरे 1500 आदमी ने पाकिस्तान सेनाओं ने मुझे घेर लिया। घेरने के बाद मुझे मारा, शुक्र में बोलते रहा, लेकिन उन्होंने मारा नहीं। लेकिन मैं उसका एक मेजर साहब था कमांडर, उन्होंने बोला कि इनको मौत मारे जिंदा ले जाना है। तो फिर मैं शुक्र ऐसे बोलते रहा, फिर भी उन लोगों ने ऐसे हाथ बांध दिया। फिर मुझे ले जाने की कोशिश की, लेकिन दूर नहीं ले जा पाया। दिन भर में शूट कर ऐसे करते रहा, बमबारी हुआ, काफी बमबारी हुआ। मैं भगवान से यही पुकार करते रहा कि मेरे ऊपर बमबारी की जाए, मैं मर जाऊँ, लेकिन बमबारी भी नहीं लगा। लेकिन मेरे बमबारी के वजह से कई घंटों बाद मुंह से भी घूम जाने लगे, शरीर में तो पूरा भूख भी लग रहा था, प्यास भी लग रहा था। उस वक्त मैं कई मेरे ड्यूटी को भी बोला कि मार शूट कर, यही बोलते रहा, लेकिन मारा नहीं। बाद में बमबारी के वजह से जो मेरा ड्यूटी कोई खत्म हो गया, कोई का छूट गया। उस वक्त में रात में तकरीबन 18-20 घंटे के बाद में फिर धीरे धीरे उठने के जमीन में जो पहाड़ी में चलते हुए जो ढलान में मैं खड़ा होने में कामयाब हुए और मैं धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया, ताकि उन लोग मैं भाग रहा है, शूट करेगा, मैं मरूंगा, ये सोच के मैं ऐसे धीरे धीरे चलते हुए मैं ऊपर चढ़ने लगे। जब 2.5-3 घंटे में मैं अपने जहाँ पे मैं पहुँचा था वहाँ पे मैं पहुँच गया और हमारे हाथ में मुझे हथियार उठाए थे, लेकिन मैं दुश्मन के अंदर से आ रहा था। लेकिन हमारा गोरखा बहुत छोटा, और 3 जुलाई की बात है, 3-4 जुलाई की बात है, 3-7 जुलाई 1999 को वहाँ जहाँ पहुँचने के बाद मुझे देखा कि चारों तरफ पूरे दुश्मन का कब्जा हमारा यूनिट में कर चुके थे और वहाँ तिरंगा झंडा फहरा चुका था। ये हमारा सक्सेस होने का एक ही कारण है कि हमने अपने जो साथ में हमला करते हुए कई जो अपने साथी कोई शहीद हुए, कोई घायल हुए, फिर भी हम कभी आगे बढ़ा नहीं छोड़ा। इस प्रकार हमने पूरे इलाके जब तक दुश्मन को पूरा क्लियर सफाया नहीं किया, तब तक हमने आक्रमण जारी रखा और हमने यहाँ किया। इसी कार्रवाई के लिए मुझे वहाँ से मैं अस्पताल में गया, दिल्ली से
कई श्रीनगर से दिल्ली में मेरा एडमिट हुआ है। तो इसी कार्रवाई के लिए मुझे राष्ट्रपति KR नारायण का 26 जनवरी 2000 को मुझे वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। वास्तव में मैं एयरपोर्ट डायरेक्टर सर पूरे स्टाफ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ इसका सम्मान दिया और मुझे यहाँ मंच में कुछ अपने शब्द रखने का जो मौका दिया है। और मैं यही सोचता हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने जिंदगी का उसी दिन आखिरी दिन सोचा था, लेकिन फिर भी आज आप लोग के सामने मैं खड़ा हूँ और अपना शब्द को जो आप लोग के सामने शेयर करने का मौका मुझे मिला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मेरा है सबका मैं समाप्त हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं और धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपना जीवन दिया और महान त्याग किया। यही कारण है कि हम इस दिन का जश्न मनाने के लिए यहाँ एक साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय। आइए अब हम अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। मैं मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करती हूँ कि इस इकाई के बल सदस्य को उत्कृष्ट सेवा पदक देकर सम्मानित करें। उत्कृष्ट सेवा पदक भारत के किसी प्रदेश में जिन पुलिस कर्मियों द्वारा जीवन रक्षण हेतु उत्कृष्ट कार्य किया गया, उन्हें यह पुरस्कार गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रधान आरक्षक GD सुमन विश्वास। उत्कृष्ट सेवा पदक देते हैं प्रधान आरक्षक GD हरमोहन खंडई। अब मैं आगे बुलाती हूँ क्रम में। प्रधान आरक्षक GD हरमोहन खंडई। गार्ड ऑफ ऑनर दस्ते का विसर्जन के लिए परमिशन मांगना। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। अब इसी क्रम में हम पहले प्रदर्शन की ओर चलते हैं। क्वाटी द्वारा राइफल रिफ्लेक्शन प्रदर्शन। कमांडो का कदमतान के साथ प्रवेश। मैं आप सबसे दर्शकगणों से अनुरोध करती हूँ कि इन सबका उत्साहवर्धन के लिए तालियों के साथ स्वागत। डेमो का अनुमति मांगना। चेक वेपन की कार्रवाई।
मद्देनजर रखते हुए इसको अमल में लाया जाता है। पीछे से दर्शकगणों से अनुरोध है, कृपया 1-2 स्टेप पीछे हो जाइए प्लीज। राइट लेफ्ट टर्न फायर, दाएं बाएं एवं पीछे से अचानक निकलने वाले दुश्मन को तेजी से फायर डालना। डिसएंगेज फायर, जब कमांडो पीटीएल ड्यूटी के दौरान अचानक दुश्मन आ जाए वैसी स्थिति में प्रयोग में लाया गया दुश्मन को बर्बाद किया जाता है। कैटवॉक पोजीशन, कमांडो टोली बिल्ली की चाल में पोजीशन अख्तियार करते हुए दुश्मन पर हमला करते हैं। ऑल राउंड डिफेंस फायर, चारों तरफ से फायर आने के उपरांत कमांडो द्वारा पोजीशन अख्तियार किया जाता है और दुश्मन को बर्बाद किया जाता है। स्मॉल पीरियड डिफेंस फायर, चारों तरफ से फायर। यह कार्रवाई तब की जाती है जब दुश्मन 8 फीट ऊंचाई के पीछे हो और तब इस प्रकार फायर डालकर दुश्मन को बर्बाद किया जाता है। यह क्यूआरटी का बहुत ही सुंदर प्रदर्शन था। आइए अब हम अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। अगला प्रदर्शन डॉग स्क्वाड द्वारा अनुरोध है सभी दर्शकगणों से, उत्साहवर्धन के लिए करध्वनि कम नहीं होनी चाहिए। डॉग स्क्वाड कदमडाल करते हुए आगे है। डॉग स्क्वाड द्वारा सल्यूट। अभी डॉग स्क्वाड द्वारा एपीडी महोदय को अभिनंदन करेंगे बुके देकर। करध्वनि की आवाज मुझे नहीं आ रही है। आगे हम देखेंगे डॉग ओबीडियंस। हैंडलर द्वारा दिए गए आज्ञा का पालन करना। बहुत ही खूबी से हैंडलर द्वारा दिए गए आज्ञा पे ध्यान रख रहे हैं। बहुत ही सुंदर। आप लोग अगर तालियां बजाते रहेंगे तो इन लोगों को और अच्छा लगेगा। बहुत ही खूबसूरत। बहुत ही उम्दा। अगला प्रदर्शन रिफ्यूजल होल्ड। हैंडलर के अलावा किसी अन्य के द्वारा दिए गए भोजन को ना लेना
एवं ना ही विश्वास करना। केवल हैंडलर द्वारा दिए गए खाने को ही खाना एवं आज्ञा को मानना। पहले क्रम में है बिंगो, दूसरे क्रम में हंटर और तीसरे क्रम में है मैगी। हैंडलर के अलावा किसी और से खाना नहीं लेंगे। दर्शक में से भी कोई भी आके एक बार ऑफर कर सकते हैं सामने आकर। कोई दर्शक गण में सामने आएंगे? My dear friends, you all know they are dogs. आप लोग मतलब this credit goes to our dog handlers. They have done a tremendous training to these dogs. That is why they follow their instructions. I congratulate all our handlers. Thank you. Good. Keep it up. अगली प्रस्तुति स्निफिंग की देखेंगे हम। डॉग स्क्वाड द्वारा किसी भी वस्तु को सूंघकर उसकी पहचान एवं विस्फोटक का पता लगाना। मान लीजिए अगर कोई बैग ऐसे ही बीच में पड़ा है, हमारे डॉग स्क्वाड का दस्ता आता है, उनमें से मान लीजिए किसी एक बैग में एक्सप्लोसिव है, ये जो हमारे स्पेशलाइज्ड ट्रेन डॉग हैं, किसी एक बैग में कुछ संदिग्ध वस्तु है किसी में और डॉग्स को पता नहीं है। अभी उनका एक्टिविटी आप वॉच करिए कि कैसे वो देखते हैं, कैसे सर्च करते हैं। स्निफिंग की प्रक्रिया के लिए डॉग स्क्वाड से मैगी है सामने अभी हमारे। बिंगो, सॉरी। स्कूटी में एक्सप्लोसिव रखा हुआ था जिसे कि हमारे डॉग स्क्वाड के डॉग बिंगो, उन्होंने पूरा स्निफ करके हमें डायरेक्शन दिया। अभी स्कूटी से एक्सप्लोसिव शिफ्ट कर दिया गया है ट्रॉली बैग में। Go cross activity. हैंडल द्वारा दिए गए आदेश अनुसार कार्य करना से कहते हैं गो क्रॉस एक्टिविटी। बहुत ही सुंदर प्रदर्शन। तालियों की आवाज कृपया करके ना रोकें। अगले क्रम में है गार्डिंग ऑफ हैंडलर।
हैंडलर पर किसी भी खतरे का एहसास होना या हैंडलर की सुरक्षा, तब ये हैंडलर की सुरक्षा किस तरह करेंगे, आगे हम देखते हैं। बस यहाँ खड़ा, यहाँ से जाएगा। गाड़ी का आदेश। गर्दनियों से ये वातावरण गूंज उठे। यहाँ हमारा डॉग स्क्वाड का डेमो खत्म होता है। डॉग स्क्वाड द्वारा सल्यूट। Dear friends, I would like to share one small incident which had happened 2019 around. There was a bomb scare in one of our flights, scheduled flight. See, there were other dogs that come, they could not उनको आइडेंटिफाई कर नहीं कर पा रहा, लेकिन हमारा जो एयरपोर्ट का CASM dogs, they identified the dogs were taken and they identified, you know, for information, mind you, there was a matchbox. They could really found out. So that's what I would tell now, they are trained in such a way that they can identify if there is any bomb in a package, you know. They identified there was a matchbox, our dog squad has identified. It's a great thing, you know, that a human being cannot even do whereas dog has done. I wish all success in always. बहुत ही सुंदर और अविश्वसनीय प्रदर्शन। अब मैं अगले पड़ाव की ओर बढ़ती हूँ। इसी क्रम में हमारे सामने मूक अभिनय लेकर प्रस्तुत होंगे अनेकता में एकता। प्रस्तुत कर रहे हैं उप निरीक्षक जयंती जहाज, मंजीत कुमार, इरफान अली, आरक्षक मानव बौरी, सुबोध मिश्रा। आइए लुत्फ उठाते हैं इस प्रदर्शन का।
मैं मुस्लिम हूँ तू हिंदू है दोनों इंसान। मैं मुस्लिम हूँ तू हिंदू है दोनों इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूँ तू पढ़ ले कुरान। अपनी तो दिल में है यारो बस एक ही अरमान, एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन। अब मैं इस विशेष अवसर पर कुछ शब्द कहने के लिए श्री सीएम गौतम, डिप्टी कमांडेंट कासो एएसडी बागडोगरा से अनुरोध करती हूँ। माननीय कासो महोदय। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपने एक डेमो में देखा कि हम अलग जाति, अलग धर्म, अलग प्रथा, अलग संप्रदाय से रहते हैं, लेकिन भारत एक है। भारत को हम सबने मिलकर बनाया है। भारत हम सभी का है, चाहे वो किसी देश, जाति, धर्म का क्यों ना हो। इसलिए इस डेमो के माध्यम से एक मैसेज दिया गया था कि आपसी मतभेद नहीं रखने हैं, सभी को मिलकर आगे बढ़ना है और इस देश को लेकर आगे चलना है। रेस्पेक्टेड श्री ज्ञानेंद्र कुमार जी, वीर चक्र 11 गोरखा राइफल, श्री सुब्रमण्य पै एयरपोर्ट डायरेक्टर, एआई ऑफिशियल्स, हमारे सीएसएफ बल सदस्य, एयरलाइन स्टाफ, NIS staff, and all the entities working at airport. My heartiest greetings and best wishes to all on the historic occasion of 76th Independence Day, being celebrated under the aegis of Azadi Ka Amrit Mahotsav. India gained independence from the foreign rule on 15th August 1947, owing to great sacrifices of our freedom and